Hi, my name is Anjali Sood and I'm here with CEO and founder of NG Networks, Mr. Nitin Goswami. We're going to ask him some questions that we often receive from candidates. So, hi sir, how are you? Hi Anjali, I'm good. How about you? I'm good too. So, let's start with the questions, shall we? Of course. So, my first and foremost questions would be, what was your idea behind NDS program that NG Networks follows? So if I talk about the origin of NDS program, that stands for Network Data Specialist, it is the collection of the success stories. It is my journey. It is a journey of a candidate who don't have that kind of a knowledge of the domains, who don't have the exposure of the market, does not have any relative or strong person working in any company who can refer them, or having that kind of percentile or marks or something like that in the background, and already having gap, a lot of things. So it is a perfect solution to just give them the desired job or at a very good package. So NDS begins with the idea that how can all these profiles that I'm talking about, with the gap and the lack of experience and the does not have the exact technical skill set, how we can place them, who gonna take care of them if someone is like a average guy or average student or just a pass out. So yes, we are the people who come up with the solution with the name of NDS, where we have a package for them. We believe that consisting the technical knowledge is not enough. You should have some other skill set as well. As I said, there's a team that we call the job provider. There are people, these people are hiring candidates. And here you or the person who's looking for the job, you don't have any idea, having just graduation or some certain skill set of technical, and they actually, this particular people wants to reach out at this place. Okay. Similarly, these people, those are looking for this network engineers or the engineers in the market, they have certain skill set, we need this type of person. They call it job description. So here we are, NDS, it's a perfect blend of the job description, what they are looking for, we prepare them accordingly and we connect them. We bridge the gap with the help of NDS in between the both people, the job seeker and the job provider in the NDS program. It was a great answer indeed, but why do you offer communication as a module in your NDS program? Well, it's not a BPO job. Yes, of course, it's not a BPO or tech support job, and still we are giving you the communication training. Look, Anjali, it's a MNC. And here what we are, it's a part of an infrastructure. Let's say you're working in any company, you're working in British Telecom, or you're working in Accenture, or you are managing the Thomas Cook project or someone else project. So where, let's say you're managing the Nestle project and you're working in the Accenture company. So the way through which we can communicate to the on-site engineers or the people sitting abroad or to this on-site locations, the only way is the English. English is the only way. And end of the day, you have a team, you are a person working under of some other people, and you have to communicate with them in English, even though you have to manage some other task as well. There is a requirement, you need to change a device at your on-site or in a data center. So you're not going to book a flight ticket and change the device. So you have your on-site engineers, you have to navigate them. And to navigate them, if their native language, they may have a different, they are German, they are French. And the end of the day, you are going to communicate with the English. So that particular moment, you should be good in English, not excellent. In the BPO, in the tech support, you should have a very good grammar and other stuff as well. But in our domain, you should have enough English. मतलब आप ठीक ठाक बोल लें, इतना ही काफ़ी है. इतना ही stuff हमारे लिए enough है कि आप बोलना जानते हो. You should not have MTI issues, mother tongue influence, आपको words pronunciation properly पता हो. So the other person on the other side, they understood what you are trying to convey them. तो इतना पार्ट है, वही हम कम्युनिकेशन में सिखाते हैं. टेक्निकल स्किल्स यानी टेक्निकल वर्ड्स आपको हम समझाते हैं. टेक्निकलिटीज़ के थ्रू हम इंग्लिश में कैसे कैसे यूज़ करते हैं वर्ड्स को, और ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कमांड करते हैं, कैसे समझते हैं, और आपके MTIs पे काम करते हैं. तो दीज थिंग्स मेक्स द कम्युनिकेशन क्लासेस. So this follows with my next question, which is about real-time training. What exactly is real-time training? So Anjali, what happening is कि अब बंदे को हम टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं. जो टेक्निकल ट्रेनिंग का पर्सपेक्टिव है ना, वो कम्प्लीटली वो आता है किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन से, चाहे हम ही दे रहे हो. अगर हम भी टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हो और हम बोल रहे हैं कि वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दी सर्टिफिकेशन, बट एंड ऑफ द डे हमने वो टॉपिक्स जो है ना, जो टॉपिक हैं वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हैं, वो किसी ना किसी सर्टिफिकेशन से इन्फ्लुएंस है. जैसे कि मैं बात करूँ, अगर मैं टेक्निकल अपने NDS प्रोग्राम की बात करूँ, तो उसके टॉपिक आते हैं CCNA से, CCNP से, CCNA डेटा सेंटर, CCNP सर्विस प्रोवाइडर, CCNA सर्विस प्रोवाइडर.
ऑल्दो ये काफ़ी इसमें से सर्टिफिकेशन अब कंटिन्यू नहीं है, बट हाँ हमने कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पायर लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब रिक्वायरमेंट है रियल टाइम में। अब बात करते हैं रियल टाइम क्या। रियल टाइम वो व्हेन यू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर, यू आर मैनेजिंग अ प्रोफाइल ऑफ अ कंपनी एज अ नेटवर्क इंजीनियर। अब वहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उसमें आता है ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क मैनेज करना, चेंज इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे टास्क आते हैं। अब ये जो टास्क होते हैं इनके लिए आपको चाहिए होता है रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। ये आपने बुक्स में पढ़ लिया और आपको किसी ने टेक्निकली पढ़ा दिया कि इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कैसे करना है और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, बेसिक ट्रबल शूटिंग। बट इन द रियल वर्ल्ड आप जब जाके नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल पे बैठ गए और आप किसी ऑपरेशन टीम में काम कर रहे हैं, आपके पास पहली इशू जो आता है उसको कहते हैं टिकट आई दैट जॉन इज नॉट एबल टू कनेक्ट। लेट्स टेक एग्जांपल। ऐसी कोई टेक्निकल बुक नहीं है जो इसका आंसर देती हो। दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू रियल टाइम। तो रियल टाइम एनवायरनमेंट में हम आपको समझाते हैं कि एक प्रॉब्लम एज अ टिकट आती है, टिकटिंग टूल्स होते हैं, मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जहाँ से आप टिकट जनरेट करते हैं, फिर आपकी उसकी प्रायोरिटीज होती है, SLAs होते हैं, तब उसको ट्रबल शूट करते हैं, कैसे उनको मैनेज करते हैं और कैसे आप कैब मीटिंग में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ITIL क्या होता है, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर में ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। एक प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, डिफरेंट हायरार्कीज क्या होती हैं, चेंज मैनेजर क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, उनकी रिपोर्टिंग क्या है और आपको किस तरीके से ये सारी अलाइनमेंट है, आपके डेटा सेंटर में कितना एक्सेस है, ISP से कितना एक्सेस है, ISP से कनेक्टिविटी कैसे है और आपका मेन हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या आप लोगों के लिए कि एक डिवाइस नहीं, सिर्फ एक डिवाइस को हार्डवेयर नहीं कहते। हार्डवेयर का मतलब है हम अपने डिवाइस को इंटरनली कितना जानते हैं। ये सारी चीज़ें रियल टाइम के अंदर कवर होती हैं, जिसके लिए पहले टेक्निकल हम पढ़ाते हैं और टेक्निकल के बाद रियल टाइम शुरू करते हैं। My next question is, what is relevant exposure? Like, do you guys give fake experience in that? It's like very common nowadays कि अभी when someone visit any other institute और वहाँ जाता है और वो बोलता है कि NG Networks इतना पैकेज लगवा देता है, इतनी अच्छी जॉब लगवा देता है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स टू दी एज एन आंसर कि यार उन पे मत जाओ, वो फेक एक्सपीरियंसेस देते हैं। तो क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड एवरीथिंग। तो ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी ने फेक एक्सपीरियंस लेके यूज़ करके और हमारे से प्लेसमेंट ली होगी और समथिंग हैपेंड, किसी को कुछ ऐसा आइडिया मिल जाता है या कोई स्टोरी सुन लेता है। तो एक गेम बचपन में हम खेलते थे कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन पास करते थे, फिर वो इन्फॉर्मेशन दूसरे बंदे पे जाती थी तो वो चेंज हो जाती थी। तो स्टोरी क्या होगी और स्टोरी चेंज हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलिवेंट एक्सपोजर का मतलब होता है कि वंस यू डन विद द कम्युनिकेशन, टेक्निकल एंड रियल टाइम, आप जैसे ही अपनी तीनों ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो यू कम टू अ स्पेशलाइज्ड टीम दैट इज आवर प्लेसमेंट टीम, जहां पे सबसे पहले हम आपकी स्क्रीनिंग, फाइनल स्क्रीनिंग लेते हैं। आपकी जो फाइनल स्क्रीनिंग होती है वो आपकी प्रोग्राम मैनेजर करवाती है। जैसी प्रोग्राम मैनेजर ने देखा कि दैट योर प्रोफाइल इज रेडी तो वो मूव कर देती है प्लेसमेंट टीम को। अब ये आपका रेलिवेंट एक्सपोजर वाला पार्ट यहाँ से बिगिन होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम आपकी प्रोफाइल देखते हैं। मे बी आपके पास एक्सपीरियंस है, मे बी आपके पास गैप है या नहीं है। तो क्या होता है, प्रोग्राम मैनेजर का काम होता है इनिशियल लेवल से उस पर काम करना। अगर आपके पास गैप है, कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, तो हमारे खुद की IT कंपनी है, हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, हम आपको उस पर काम कराएंगे जिससे आपके पास रेलिवेंसी आ जाएगी आपकी प्रोफाइल में। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो आपके पास टेक सपोर्ट का है, BPO का है, उसमें आपने कितनी नेटवर्किंग स्किल से काम किया है या नहीं किया है, तो हम उस पर आपसे बताएंगे। रिज्यूम प्रोफाइल को इस तरीके से बनाएंगे कि वो इजीली चूज हो जाए। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, कैपजेमिनी, वो इजीली BPO टेक सपोर्ट का बंदा पिक कर लेती है एज अ नेटवर्क इंजीनियर, अगर उसमें थोड़ी सी भी रेलिवेंसी है रिलेटेड टू दी नेटवर्किंग। तो वो हमें बहुत अच्छा आइडिया उस चीज़ का। इट्स माई फोर्टे, प्रोफाइल बनाने का काम मेरा है। और अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर ही है, ऑलरेडी काम कर रहा है लेकिन मिक्स काम कर रहा है, सिस्टम इंजीनियर हो क्या, तो हम उसमें भी उसकी भी प्रोफाइल को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाए। जैसी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, इंटरव्यूज। तो हमारे खुद इतने अच्छे लिंक्स हैं कंपनी के अंदर कि हमारे पास इंटरव्यूज खुद आते हैं। वी डोंट नीड टू गो एंड फाइंड द इंटरव्यूज। हमारे अगर मेरा आप अभी व्हाट्सएप खोलोगे तो यू विल फाइंड, भाई 2 प्रोफाइल दे दो, 4 प्रोफाइल दे दो। इट्स बीन 9 years इन द इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली, इतना टाइम हो गया। तो बहुत अच्छा एक आइडिया है सबको। अगर इंडस्ट्री के अंदर आज कहीं ना कहीं अगर कोई नेटवर्क प्रोफाइल में किसी को इंस्टेंट प्रोफाइल चाहिए, रिज्यूम चाहिए, तो सबको पता है कि यार द ओनली डेस्टिनेशन इज NG Networks। अब वो इजीली NG Networks यानी मेरे पास आता है, मेरी टीम को अप्रोच करता है, हमारे काउंसलर को अप्रोच करते हैं कि हमें कुछ CVs दे दो। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बंदे कम है, क्योंकि बंदों को तैयार करना, उनको प्रिपेयर करना, उनको सारा समझाना वो टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी प्लेसमेंट इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग। तो जैसे ही हमारी पहले प्रोफाइल बनी, फिर हमने इंटरव्यू कराया। हाँ, मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि हम कोई भी बैकडोर एंट्री नहीं कराते। कहीं आपके माइंडसेट है कि हम बैकडोर या पैसे दे के जॉब लगवा रहे हैं, ऐसी सेटिंग करके, नहीं। प्रॉपर प्रोसेस होगी, ऑफकोर्स किसी से बेटर ही होगी बाकी सबसे आपको, लेकिन हम वो रियलाइज नहीं होने देंगे। आप प्रॉपर प्रोसेस से इंटरव्यू दे के, हमारे कुछ भी लिंक है वो आपको इससे मतलब नहीं है।
आप प्रॉपर इंटरव्यूज़ देके जाएंगे, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, चैनल के थ्रू जाएंगे, और इंटरव्यू होने के बाद आपकी थर्ड प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको एक कोऑर्डिनेटर मिलेगा ताकि डॉक्यूमेंटेशन, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग तक आपको सारी सपोर्ट मिलती रहे डेडिकेटली। ये सब रेलिवेंट एक्सपोजर में आता है। और एज अ गिफ्ट, एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट, कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स को हम एक चीज़ और देते हैं, रिप्लेसमेंट। अनदर 5 ईयर्स तक आपके रिप्लेसमेंट को भी हम देखेंगे। रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि आज हमने आपको प्लेसमेंट दे दी, आपने काम किया 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, जो भी काम किया, उसके बाद यू कैन कम डाउन अगेन। आप हमें दोबारा अप्रोच कर सकते हो, बता सकते हो कि यार यू कैन कम डाउन फॉर द काउंसलिंग। अगर आपको और ग्रोथ करनी है और कुछ पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आप हमें मेल डालोगे सपोर्ट पे और हम आपको विदाउट चार्ज हम आपको नए इंटरव्यूज देना शुरू कर देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द रेलिवेंट एक्सपोजर। Thank you, sir. So my next question would be about the placement. What is the placement process after completion of this program, which is your NDS program? You heard about the origin of NG Networks. तो वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो सारा प्लेसमेंट का ही है। अगर मैं बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर जो काम शुरू किया है वो एज अ कंसल्टेंट ही शुरू किया, प्लेसमेंट देना ही शुरू किया। तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है कि एक बंदे को प्लेस कैसे किया जाता है। अगर मेरा फोर्टे, जैसे मैं बता रहा था कि है, तो वो प्लेसमेंट के अंदर ही एक बंदे को कैसे नेटवर्क इंजीनियर बनाया जा सकता है। एक स्पेशलाइज स्ट्रीम है जिसका काम है प्रोफाइल देखना, इंटरव्यूज देखना, आपको अपडेट्स देना, आपके चेंजेस बताना। देखो ऐसा होता है जैसे आपके इंटरव्यू शुरू होते हैं तो डेफिनेटली पहला और सेकंड इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है, और कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो टेक्निकली पढ़ लेते हैं, रियल टाइम भी समझ लेते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यूज पे आते हैं तो वी फाइंड कि यार उन बंदे का तो बैकग्राउंड ही कुछ नहीं है। आप ये मानोगे, हम मेल लिखना सिखाते हैं, हम MS ऑफिस चलाना सिखाते हैं, हमें इतने सारे चैलेंजेस एक बीटेक के बच्चे से मिल जाते हैं जो हमें उनको इंडिविजुअली देने पड़ते हैं, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। लेकिन अगर एक बार कमिट किया है कि प्लेसमेंट देनी है तो फिर तो देनी है, उसमें कुछ सिखाना पड़े या किस लेवल तक भी जाना पड़े, I'll go। मैं इंडिविजुअली जाके उस बंदे पे काम करता हूँ जहाँ पे उसको स्पेशल हेल्प की जरूरत होती है। इसी तरीके से हम बंदे को तैयार करते हैं, उसकी अच्छे से स्क्रीनिंग लेते हैं, स्क्रीनिंग करने से बंदा रिफाइन हो जाता है, और जैसी ही सारी चीज़ें होती हैं फिर हमारे पास एम्पल ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। एक टीम है जो कि इंटरव्यूज़ मैनेज करती है। वो इमीडिएटली जैसे ही हमारी तरफ से, प्रोग्राम मैनेजर से और जो हमारी प्लेसमेंट मैनेजर है, दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता है, इमीडिएटली उनको इंटरव्यूज़ उनके मेल पे, उनको व्हाट्सएप पे, उनके कॉल के थ्रू इंटरव्यूज़ अपडेट आने लग जाते हैं कि यहाँ देना है। मतलब उसके बाद तो उनको बैक टू बैक इंटरव्यूज़ ही देने हैं। अगर उनके साथ कुछ चैलेंज आ रहा होता है, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू दिया और बंदे ने क्रैक कर दिया, नहीं, फर्स्ट में भी हो जाता है, सेकंड में भी होता है, नहीं भी होता तो वी विल स्पीक टू देम। एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट मैनेजर है जो प्रोग्राम मैनेजर को अपडेट करते हैं कि कहाँ पे बंदा स्कोर नहीं कर पा रहा है या फिर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। उस पर्टिकुलर सेक्शन को पकड़ा जाता है और उसकी दोबारा से ट्रेनिंग में डाल के उसको वो एक्सेल किया जाता है, उसको दोबारा समझाया जाता है और टेक हिम बैक टू दी प्लेसमेंट प्रोसेस। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, मतलब ऐसा चांस ही नहीं है कि मैं अगर कहूँ 100% गारंटी दे रहे हैं। तो शायद टीम इस तरीके की है और प्रोसेस इस तरीके की रिफाइंड है कि हाँ, अगर बंदा सीरियसली हम पे ट्रस्ट करके चल रहा है तो he or she will get placed. Sure, sir. So next question in the line is, how can someone access the lab from their place if they are choosing online classes? परफेक्टली फाइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे नमिता ने और मेरे अदर काउंसलर्स ने कई बार ये क्वेश्चन किया है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हमें कंपेयर करते हैं, हमारी लैब्स को कंपेयर करते हैं और हमारी ट्रेनिंग को कंपेयर करते हैं एक CCI इंस्टीट्यूट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारा क्रिस्टल क्लियर एम है कि हमें आपको नेटवर्क इंजीनियर बनाना है, एक CCI सर्टिफाइड इंजीनियर नहीं बनाना है या कोई सर्टिफिकेशन नहीं कराना है। तो नेटवर्क इंजीनियर बनाने के लिए कुछ सर्टेन स्किल सेट की जरूरत होती है, कुछ थियोरेटिकल, लैब, टेक्निकल स्किल सेट, और वो सारी की सारी लैब हमारे पास एम्पल है, मतलब बहुत इनफ डिवाइसेज हैं हमारे पास, इनफ डिवाइसेज हैं। वी डू नॉट फॉलो दी फिक्स रैक। हम ऐसा नहीं है कि एक फिक्स रैक में डिवाइसेस माउंट कर दिए और आपको दे रहे हैं। वी गिव यू दी इंडिविजुअली, हम आपके हाथ में देते हैं कि दीज आर दी 3 राउटर स्विचेस, L3, L जो भी L2 हैं, आप इन पे बैठ के काम करो, प्ले विद इट। क्योंकि आप जब इन पे बैठ के इंडिविजुअली लेके बैठोगे, खुद केबलिंग करोगे, खुद पूरी लैब बनाओगे, देन ओनली यू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर। यहाँ पे कोई लैब क्रैक नहीं करनी है, यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करना है। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको एक सर्टेन स्किल सेट होना चाहिए। लैब यहाँ पे भी करनी है, बट हमारा गोल क्या है? ट्रबल शूटिंग। वो ट्रबल शूटिंग बहुत बेसिक सी भी हो सकती है, तो वो कैसे होगी, उसके लिए प्रोसेस क्या है, हम रियल टाइम में पढ़ाते हैं आपको। VLAN बनाना, डिलीट करना तो आपने टेक्निकल में सीख लिया, लेकिन रियल वर्ल्ड में आप कैसे काम करोगे वो CCI में नहीं समझ में आ सकता, ना ही टेक्निकल में हमारे समझ में आ सकता। दिस इज रियल टाइम थिंग, तो हम आपको रियल वर्ल्ड में समझाएंगे। एक तो माइंड सेट है बंदों का कि हमें जाके फिजिकली लैब करनी है, कोई जरूरत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी जब जॉब लग जाएगी, आपकी हम TCS में जॉब लगवाएं, IBM में लगवाएं, कैपजेमिनी में लगवाएं या एसेंचर में लगवाएं, आप उसकी बैंगलोर, दिल्ली, NCR या फिर हैदराबाद या कहीं भी जाके आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपका जो डेटा सेंटर है ना, वो कैलिफोर्निया, लुइसविले या फिर वॉशिंगटन में लगा हुआ है या सिडनी में लगा हुआ है। आप हर बार फ्लाई करके वहाँ पे उस डिवाइसेस को, रैक को माउंट करने या फिर उसको केबलिंग करने नहीं जाओगे। आपको वहीं बैठ के ऑनलाइन ही एक्सेस लेना है और उसको ट्रबल शूट करना है, और यही हम सिखाते हैं।
तो मैं तो खुद रिकमेंड करता हूँ, गो फॉर द ऑनलाइन लैब। आप ऑनलाइन करो, अच्छे से सीखो, समझो, क्योंकि हार्डवेयर को समझने के लिए हमारे पास उतना इंस्ट्रूमेंट, उस तरीके से क्लासेस डिजाइन है जिस तरीके से आपको किसी और को बताना है। स्पेशली आपको एक टीम असाइन होती है, टेक्निकल असिस्टेंट्स मिलते हैं आपको ओवर द कॉल और मेल के थ्रू उनको बताना होता है, समझाना होता है, और वो वहाँ जाके ट्रबल शूटिंग करते हैं आपके लिए। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, सभी कर रहे हैं और ईजी है। तो आपको जैसा सिखाया जाता है आप उसी तरीके से चलते हैं। तो मैंने जो बताया वो एक रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बताया, और उस अकॉर्डिंग यू कैन एक्सेस द लैब ऑनलाइन इजीली। Sure, sir. So next question would be about like how is NDS different from Cisco certification courses such as CCNA, CCIE and CCNP? CCNA करने के लिए आप फ्रेशर हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप CCNA करो तो आप इजीली ऑफ कैंपस ऑन कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आती है काफ़ी सारी कंपनीज की आती है, जैसे कैपजेमिनी ऑफर करती है 14-15,000 का स्टार्टिंग पैकेज ऑफर करती है, वो हायरिंग करती है, CCNA वाले कैंडिडेट्स को पिक करती है और स्टार्टिंग पैकेज में बता रहा हूँ, और उनको 1 साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है जहाँ पे वो पूरा काम कराती है, अच्छे से काम कराती है, और उसके बाद डिसाइड करती है कि आप कंटिन्यू करोगे नहीं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं CCNP में और CCI पे। अगर आप ये दोनों सर्टिफिकेशन पे अभी सिस्को की वेबसाइट पे जाके क्लिक करोगे CCI सर्टिफिकेशन का और प्री रिक्विजिट पे जाओगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन है यू शुड हैव 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के आगे लिखा भी है कि 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, लैन एंड वैन के एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने इस एनवायरमेंट में काम करना चाहिए। तो इससे बड़ा मैं क्या एग्जांपल दूं कि वाई NDS इज इंपॉर्टेंट, और मेरी NDS के लिए कोई भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो जब सिस्को कह रहा है कि मेरे सर्टिफिकेशन के लिए ये स्किल सेट लाओ, ये नॉलेज लाओ, तो ही कुछ करियर में कर पाओगे, तो ऑब्वियस यार फिर तो मतलब मैं आई डोंट नो, फिर तो एक बंदे की चॉइस है, अब एल मुझे मार, wherever you want to go you can go. Sure, sir. So next question is how you are assuring a job guarantee in NDS program? Again a good thing, assuring job guarantee, मतलब 100% कैसे हो सकता है यार? 100% तो कुछ नहीं है ना दुनिया में। Exactly. 100% हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो जब 100% कुछ नहीं है तो तब 100% NDS में जॉब है। एक्चुअली क्या है, अगर आप एक डेडिकेटेड इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो, एक्चुअली मैं एक सिंपल टर्म यूज करता हूँ, आप चाहते हो, मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको मेरे हैदराबाद वाले ऑफिस जाना है, दिल्ली वाले ऑफिस जाना है, और अगर मैं आपको कंप्लीट एड्रेस लिख के दे दूँ और आपको एक वे बता दूँ कि आप पहले यहाँ से एक बस लेंगे, आप उसके बाद मेट्रो लेंगे, आप उसके बाद कैब लेंगे और उसके बाद वॉक करेंगे 5 मिनट्स, और आपको इस ग्रीन कलर की बिल्डिंग दिखेगी, उसके साथ वाली बिल्डिंग में आपको एक हॉस्पिटल दिखेगा या कुछ दिखेगा, एक क्लिनिक दिखेगा, उसकी 3rd फ्लोर पे जाना होगा तो आपको मेरा ऑफिस मिल जाएगा। अगर मैं सारी चीज़ें लिख के दूँ आपको स्पेसिफिकली, तो क्या आप मेरे ऑफिस पहुँच पाएंगे? Yes. 100% पहुँच जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हो तो आपको जाना ही नहीं होगा ना, तो ना आपको बस मिलेगी, ना मेट्रो मिलेगी, ना कैब मिलेगी, एड्रेस भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका मूड है, आप कंफर्म हो कि आप जाना चाहते हो, तो मैं 100% दे सकता हूँ कि मैं आपको एड्रेस लिख के दूंगा और आप पहुँच जाएंगे। तो बस यही है, जॉब है, ठीक है ना। सक्सेसफुल होना वो आपके हाथ में, वो हम कोई 100% नहीं दे सकते, लेकिन हाँ सक्सेसफुल करियर हम आपको बता सकते हैं कि कैसे बन सकता है। जॉब की गारंटी मैं 100% ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे मैं आपको भी एड्रेस समझा रहा था, इसी तरीके से मेरे पास एक जॉब तक जाने का भी एड्रेस है कि आपके पास क्या स्किल सेट होने चाहिए, उनको किस अमाउंट में डिवाइड करना चाहिए, किस किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए, किस तरीके से डिलीवर करना चाहिए, कितने टाइम में डिलीवर करना चाहिए। और अगर मैं राइट टाइम पे राइट अमाउंट आपको डिलीवर कर देता हूँ तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आई कैन हेल्प यू टू गेट placed. So next question in line is about the fee. Like why this fee is too high according to the market? It's a myth. It's a myth कि यार फी बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब इफ़ यू गो एंड स्पीक टू द प्लेस कैंडिडेट, ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि यार आज नॉट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि उस टाइम फी दे रहे होते हैं, तो उस टाइम तो हम अच्छे नहीं लगते। बट लेकिन देयर इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आफ्टर 3 years और 5 years दे हैव स्पेंट इन द मार्केट, तो उस टाइम का अमाउंट उनको पता है कि अगर उन्होंने उस टाइम पे NDS ज्वाइन नहीं किया होता, उनको मैंने राइट प्रोफाइल राइट टाइम पे नहीं दी होती, तो देयर मस्ट बी स्ट्रगलिंग समवेयर, और बहुत छोटे अमाउंट में स्ट्रगल कर रहे होते। ऐसे मैं इतने एग्जांपल दे सकता हूँ, इतने लोगों के एग्जांपल दे सकता हूँ। अब बात आती है कि चलो मार्केट से कंपेयर करते हैं। मार्केट से कंपैरिजन में तो कोई कोर्स ही नहीं है, NDS नाम का कोई कोर्स नहीं है, तो जो मैं चार्ज करता हूँ उसको अपने एक्सपीरियंस के चार्ज करता हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अभी कुछ केसेस आ रहे हैं कि हमारे ही कुछ ट्रेनर्स और हमारे ही कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ इस कॉन्सेप्ट को लेके अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ केस भी रजिस्टर किए हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखो, एक आइडिया ना, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है आइडिया के साथ। आइडिया तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। किस अमाउंट में, जब एक प्रोफाइल आती है मेरे सामने तो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है कि मेरे पास राम और श्याम दो कैंडिडेट आए हुए हैं और आई हैव अ गुड आइडिया कि राम का बैकग्राउंड मैं एक बार समझ लेता हूँ
10-12 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर और श्याम का भी बैकग्राउंड समझ लेता हूँ. सो आई नो व्हाट टू कीप इनटू द रिज्यूमे ऑफ राम और व्हाट नॉट टू कीप इनटू द रिज्यूमे ऑफ श्याम. तो आई नो इट वेरी वेल. तो उनकी प्लेसमेंट में ईजी हो जाता है, तो किसी को भी हार्म नहीं हो रहा है, उन दोनों का फ्यूचर सक्सेसफुल बन सकता है मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कुछ लोग, इस आइडिया को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लेसर प्राइस में. अब ऑब्वियस है कोई ऑडियंस में बैठा है और उसको पता चले कि मेरे से एक अच्छे खासे डिस्काउंट में कोई और ये कोर्स ऑफर कर रहा है, तो वो जाके कोशिश करेंगे ज्वाइन करने की. तो टेक्निकली तो शायद पढ़ा देगा बंदा, पर ये एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा, ये नॉलेज कहाँ से लाएगा कि आपको किस कंपनी में लगाया जा सकता है. वो क्या करेगा, वो एंड ऑफ द डे यही करेगा कि उसके पास एक्स कंपनी से रिक्वायरमेंट है तो आपका भी सीवी इसमें भेज दिया, उसका भी भेज दिया. वो फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता, ना ही उसके पास एक्सपोजर है. इम्पॉसिबल इज नथिंग. अगर जेनरसली करना होगा तो कोई स्टार्ट करेगा, अपने तरीके से स्टार्ट करेगा, एनडीएस कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना कोई प्रोग्राम बनाएगा. हमारे अलावा जो ऑप्शंस आते हैं वो सीसीआई के आते हैं. अगर मैं उससे भी कंपैरिजन बता दूं तो यार एक सीसीआई की फीस कहीं भी नॉर्मली आपको 1 से 1.5 लाख रुपए मिलेगी. फिर उसमें जॉब करने के लिए आपको सीसीआई का सर्टिफिकेशन भी निकालना पड़ेगा, लैब भी थ्योरी भी निकालनी पड़ेगी, लैब भी. तो टोटल कॉस्टिंग 1 से 1.5 लाख रुपए आपकी फी चली गई. उसके बाद थ्योरी का एग्जाम है कुछ 30,000 रुपए, 30,000 अप्रोक्सीमेटली. देन उसकी लैब 1.5 लाख की, तो कुछ 3 लाख रुपए के आसपास आपका खर्च होता है. अब उस 3 लाख में आपको 4 लाख की सैलरी की गारंटी मिलती है. तो वो 3 लाख रुपए खर्च करके वो 4 लाख का पैकेज ले लो, या हमारी फी देके आप 8 लाख एवरेज पैकेज, हम मिनिमम 6 लाख का लेते हैं और एवरेज पैकेज 8 to 9 लाख, 7 to 9 के बीच में देते ही देते हैं. तो बाकी आपकी स्मार्टनेस है, आपकी इंटेलिजेंस है, आप क्या चूज करते हैं. Sure, sir. Sir, what could be the maximum time for the course? So exactly this is something very important. So candidate can maximum reach out to the 1 years. ठीक है. if you are taking break or if you are something, so that is a special case. So maximum आप हमारे 1 साल इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन हमारा ट्रेनिंग फॉर्मेट इस तरीके से है कि बंदा विद इन द टाइम पीरियड ऑफ गिवन टाइम पीरियड वो कर लेता है. एक डेडिकेटेड प्रोग्राम मैनेजर असाइन किया हमने बंदे को. तो उस प्रोग्राम मैनेजर का काम ही यही है कि यू विल कंप्लीट योर ट्रेनिंग इन टाइम. क्योंकि अगर आप टाइम एक्सटेंड करते हो तो आप उसमें हमारा भी लॉस करते हो, क्योंकि वी नो कि आप एक कैंडिडेट आए और यू हैव टू कंप्लीट द ट्रेनिंग विद इन 6 मंथ. अगर आप उससे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो हमारी कॉस्टिंग आने लगेगी उसकी. तो हर बंदा ही चाहता है कि वो मिनिमम कॉस्ट में हो जाए, बट ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है. आपके कोई स्पेशल केस रहता है तो यू कैन ड्रॉप दी ईमेल्स टू योर प्रोग्राम मैनेजर कि मेरे को ब्रेक लेना है या कुछ ऐसा करना है. और कुछ केसेस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स टाइम एक्सटीड कर देते हैं, 6 मंथ 7 और 8 मंथ्स कर देते हैं, 10 मंथ्स कर देते हैं. या तो वो छुट्टी पे जाते हैं या फिर वो ट्रेनर स्पेसिफिक हो जाते हैं कि ट्रेनर की जब एबिलिटी होगी ना इसी से पढ़ना है. ऐसा भी रिसेंटली हुआ है कि एक कैंडिडेट की प्लेसमेंट हुई, उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया. और जब मैंने उसी कॉल पे मैंने उसके ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर को ले लिया तो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इसने 1.5 महीने का गैप लिया. क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनर वही चाहिए था, जबकि उसे बोला गया कि दूसरे ट्रेनर से एक बार ट्राई करके देखो, बट ही वॉज वेरी स्पेसिफिक. तो इस वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है. अदरवाइज जो फॉर्मेट है और जो प्रोग्राम मैनेजर स्पेशली एक बंदे की डेजिग्नेशन इस तरीके से बनाई हुई है कि उनका काम ही है कि आपके प्रोग्राम को 6 मंथ का जो कमिटमेंट दिया गया उसके अंदर कंप्लीट किया जाए. तो सिंपल है. आई होप इससे बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. So guys, feel free to ask any other questions on my LinkedIn account or anywhere else on our social account. We'll answer everything. Thank you.